डबवाली में देह व्यापार का धंधा लगातार चरम पर चल रहा है। डबवाली पुलिस आंखों पर पट्टी बांध बैठी हुई है। डबवाली पुलिस लगातार इनको पहले भी नेशनल हाईवे के टॉर्च के सहारे लूटपाट के मामले सामने आए थे, तो इन सेक्स रैकेट कर्मियों के वर्कर निकले थे। उसके बावजूद भी डबवाली पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। इस बार भी वही हालात दोबारा से डबवाली में देखना शुरू हो चुके हैं। डबवाली में सेक्स रैकेट का जबरदस्त कारोबार चल रहा है, लेकिन पुलिस को कोई बड़ा एक्शन लेने में अब तक नाकाम साबित हुई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की इन जिस्म फरोशी लोगों के साथ मिलीभगत हो सकती है। अब देखना होगा कि पूरा मामला मीडिया में आने के बाद आखिर पुलिस क्या एक्शन लेती है। ਰੋਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਤਿੰਨ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਅੱਗੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧਮਕੀਆਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਰੋਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਟੱਪ ਜੋ ਇੱਥੋਂ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਲਮਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਡਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕੱਲ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਕਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਡੇ ਇਹ? ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਨਿੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ? ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਘਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਮਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੁੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਡਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹਿਨੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਵੈਨ ਤੱਕ ਚੜਾਉਣਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਡਰ ਇੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਈ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਗੀਚਾ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਨਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ 11000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਛੱਡਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਲੋਕ ਗੇਟ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੇਟ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ? ਲੋਕ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਲੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਡਲੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਏ 3 ਘਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ? ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰੋਬਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ, ਆਪਦੇ ਮਕਾਨ ਆ ਸਾਡੇ। ਆਪਦੇ ਮਕਾਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? 2 ਮਿੰਟ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੰਮ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ। ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੰਦ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਇਹ ਗੰਦ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ। ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਡੇ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜੂ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਵੇਸ਼ੇਵਤੀ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਰਨਾ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਸੱਚੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਚੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਾਲ ਗਲੋਚ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੈ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਪਾੜਤੇ, ਮੈंने ਥੱਪੜ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 302 ਕੱਟੀ ਹੈ, 302 ਚ ਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੁਟਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਜੇਲਾ ਜੁਲਾ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਤ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਧਮਕੀ ਆ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸੋਰੀ ਮੰਗਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੱਲ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ? ਮੁੰਡੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤਰਫੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਧਰਨਾ ਕੱਲ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ? ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚੱਕੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਤੇ बैठे। हाँ जी। अब क्या है, अब इन्होंने सभी ने ठान लिया
कि जब तक ये सभी दिहाड़ी मजदूरी वाले बंदे हैं, सभी ने दिहाड़ी मजदूरी छोड़ दी है, और जब तक ये घर बंद नहीं होगा, जब तक ये यहाँ से काम बंद नहीं होंगे, तब तक ये धरना चलेगा। और हम बिल्कुल इनके साथ है। वार्ड 18 का पार्षद भारती हमारे साथ है, मैं इनके साथ हूँ। हम बिल्कुल जीत जान से इनके साथ है। जब प्रशासन को सुनवाई करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी, चाहे हमें एसपी ऑफिस के सामने धरना देना पड़े, चाहे हमें जो मर्जी करना पड़े, लेकिन इनको हम यहाँ से बंद करवा कर ही हटेंगे। अब हाँ जी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मैं परवीन शर्मा। अच्छा, की गलबात है थाना लाया? गलबात ये एरिया वार्ड नंबर 17 का एरिया है, प्रेमनगर, और 18 भी आता है इसमें। ठीक है। इसमें को 2-3 घर है, कई दिनों से गलत काम यहाँ पे चल रहे हैं। लोगों ने, यहाँ के जो लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, वो पहले डर के मारे पहले कुछ बोले नहीं, और तब कोई बेचारा कोई घर एक आधा कोई आगे होता है तो उसको डरा देते हैं, धमका देते हैं, उसके घर पे रात को कोई गेट खड़कवा देते हैं, घर पे बंदे भेज देते हैं, वो बेचारा डर जाता है, बोलता नहीं है। ऐसा ही चांस कल तब एक यहाँ पे भाई हमारा राजू, उसके घर पे उसके साथ कल फिर हाथापाई होगी। राजू के पास ये आए थे, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए कि भाई ये काम यहाँ चलता है। और अब तो पहले क्या था कि पहले कुछ ये काम होता था, कोई लंबा इतना सिस्टम नहीं था, लेकिन अब आने वाले जो पीछे 2-4 महीने गए हैं, इन 2-4 महीनों के अंदर यहाँ पे इतना बुरा हाल हो गया कि दिन में ये नहीं पता कि दिन में 50 कार आती है कि 100 कार आती है, मोटरसाइकिलें आती है, यहाँ पे मेला लगा रहता है दिन रात। और जो यहाँ पे आसपास में जो घर हैं, जब रात का जैसे 9-10 का टाइम होता है, उसके बाद उनके गेट खड़काने देते, दारू वाले लोग आते हैं यहाँ पे, नशे वाले लोग आते हैं यहाँ पे, चिट्टे वाले लोग आते हैं यहाँ पे। और जो अगर कोई किसी और का गेट खड़का दिया, अगर वो बंदा बाहर आ गया तो उसके साथ हाथापाई करते हैं, गलत बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं। ऐसा यहाँ पे बहुत ही बुरा माहौल हो गया। तो जैसे ही कल राजू के पास आए तो राजू तब उसके घर पे कहा कि वो इसको बुला के लाओ। राजू के घर पर आके उनकी हिम्मत देखो, जो बंदा बोलने गया कि ये काम आप बंद करो, ऐसा काम मत करो आप, उसी के घर पे आके एक ऐसा बंदा जो पंचायती बंदा है उसके घर पे आके और उसके साथ मारपीट की, उसके साथ उसके कपड़े फाड़ दिए। और वहाँ पे लेडीज थी घर पे, उनको सामने उनको गलत बोला, गालियां निकाली, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। तरावड़ी अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन की तरफ से हलके के विधायक भगवान दास कबीरपंथी का सम्मान किया गया। तरावड़ी अनाज मंडी प्रधान के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडी एसोसिएशन के प्रधान शीशपाल गुप्ता ने की। तरावड़ी अनाज मंडी प्रधान के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडी एसोसिएशन के प्रधान शीशपाल गुप्ता ने की। कार्यक्रम में मंडी एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों के अलावा मंडी के आड़ती, व्यापारी और उद्योगपति मौजूद रहे। मंच संचालन मंडी के कैशियर यशपाल शर्मा ने किया। कार्यक्रम में पहुंचते ही मंडी एसोसिएशन की तरफ से विधायक भगवान दास कबीरपंथी का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। मंडी के प्रधान शीशपाल गुप्ता ने विधायक भगवान दास कबीरपंथी को तरावड़ी अनाज मंडी की समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि तरावड़ी अनाज मंडी में काफी एरिया में इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाई जानी है। इसके अलावा कई बूथों पर मंडी आड़तियों के लाइसेंस नहीं बने। यही नहीं, मंडी में पार्किंग व्यवस्था भी बनवाई जाए। विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने मंडी एसोसिएशन की सभी समस्याओं के समाधान के निर्देश देते हुए मौके पर मौजूद मार्केट कमेटी सचिव संदीप सचदेवा को कहा कि मंडी में आड़तियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न आए। क्या क्या समस्या संज्ञान में आई और क्या आश्वासन दिया गया था? देखो, आज मंडी एसोसिएशन के सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे आड़ती भाई हैं, सभी ने कहा आज मैं धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि चुनाव में मंडी एसोसिएशन का तरावड़ी और डिस्ट्रिक्ट नीलोखड़ी तरावड़ी सभी आड़ती भाइयों का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। आज उनका धन्यवाद करने के लिए पहुंचा था और सभी का आशीर्वाद लिया। और सभी जो अलग अलग समस्याएं आ रही है मंडी में, उन्होंने सब अपनी समस्याओं को से अवगत करवाया और मैंने भी विश्वास दिलाया है कि इन सभी समस्याओं को हम जल्दी से जल्दी इनको दूर कराने का काम करेंगे। नहीं, मैंने उसके लिए जो किस लेवल पे रुका हुआ था, किस कारण से था, ये सारी समस्याएं नोट करके, क्योंकि जो ठेकेदार था उसकी बदमाशी थी, उसकी वजह से सारी ये परेशानी खड़ी हुई है। लेकिन पिछले 2-4 साल से इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब जानकारी लेकर के, क्योंकि अभी जो काम हो चुका था उसके बाद कितना तैयारी में इसमें पैसा लगेगा, कितना इसका एस्टिमेट बढ़ेगा, वो सारा एस्टिमेट बनवा करके अब इसका दोबारा टेंडर लगेगा, वो सरकार से अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट के पास भेज दिया है
उसको अप्रूवल लेकर के हम जो इसका बचा हुआ काम जल्दी से जल्दी उसको पूरा करेंगे। भागदौड़ करके कोशिश करूंगा कि आने वाला जो सेशन है इसमें बच्चे हमारे यहीं पर अपनी आगे की पढ़ाई करें। नहीं, कोई नहीं, अभी सभी अधिकारी करेंगे। थोड़ा सा सबसे मैंने अपील भी की है कि आप काम में लापरवाही ना बरतें। जनता का है, जनता को चक्कर ना काटने पड़े। जो काम आपके पास लेकर आए उनको आप प्राथमिकता से करें, चक्कर ना कटवाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और जनता की जो समस्याएं वो सुनेंगे और उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। जितने अधूरे काम थे, वो कह दिया नहीं मैंने, जितने अधूरे काम है वो सब की जानकारी लेकर के, अब इसमें कुछ समय लगेगा, थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। शहर के लिए जितने अधूरे काम है वो पूरा कराएंगे और नई कुछ योजना होगी वो भी आपको आने वाले समय में उन पर भी काम चलता हुआ मिलेगा। नहीं, एक साल भी अब इसके 2 साल बाकी है। वैसे तो ठेकेदार के इसके बोल दिया कि इसको एक बार रिपेयर करो। बाकी मेरी आगे कोशिश ऐसे है, इसको मैं अभी ये 18 फुट की है, इस सड़क को चौड़ा करा करके 33 फुट का किया जाए। तो मैंने इसकी प्रपोजल बना लिया। आने वाले समय में ये जो इतनी बड़े बड़े ट्राले ट्रक चलते हैं इस पे और बड़े हादसे होते हैं, तो मैंने ये सारी जानकारी अपने ऊपर PWD विभाग को दे दी है। जब ये सड़क बने तो अगली बार ये 18 फुट की बजाय 33 फुट की बने, ताकि इस पे किसी तरह के हादसे ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। अंबाला में आज फिर घना कोहरा देखने को मिला, जिससे जनजीवन फिर से अस्त व्यस्त हो गया। कोहरा इतना घना था कि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई, जिस कारण लोगों को आने जाने में भी काफी परेशानी हुई। सबसे ज्यादा काम करने वाले लोगों को परेशानी हुई। उनका कहना है कि वे सुबह से काम पर आए हुए हैं, लेकिन कोहरे के कारण काम नहीं हो पा रहा है। यही हाल रोड पर चलने वाले वाहनों का है। वाहन चालकों को अपने वाहनों की लाइटें जलाकर धीरे धीरे वाहन चलाने पड़ रहे हैं। सड़कों पर, खासकर हाईवे पर वाहनों को रेंगते हुए देखा गया। लोगों को अलाव का सहारा लेते हुए भी देखा। कल सुबह ही धूप निकल गई थी, जिससे लोगों को ठंड से काफी राहत मिल गई थी। आलम ये था कि लोगों ने काफी हद तक गर्म कपड़े कम कर दिए थे, लेकिन अल सुबह से ही घना कोहरा पड़ना शुरू हो गया, जिससे एक बार फिर से ठंड शुरू हो गई, जिससे लोगों ने गर्म कपड़ों के साथ ही अलाव का सहारा लेना पड़ा। मेरा नाम विनोद शर्मा है, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। अभी जयपुर से अम्बाला बिजनेस के काम से आया था मैं, कंपनी के काम से। और यहाँ पाया कि पूरे रास्ते में बहुत कोहरा है और जो आना जाएंगे सभी को प्रॉब्लम हो रही है। गाड़ियाँ जो टाइम से नहीं पहुँच पा रही है, तो कोहरे का सामना हर किसी को करना पड़ रहा है। तो सभी को सतर्क रहना चाहिए और सावधानी से चलना चाहिए। बाई बस के द्वारा है, ट्रेन से तो इतना एहसास नहीं होता, बट बाई बस देखा जाए तो ट्रक एक्सीडेंट होने का बहुत चांसेस रहता है। तो आप पूरे रास्ते में ऐसा ही कोहरा होगा तो ठंड रहेगी। महारामा जी क्या कर रहे हो? चाह जी कपड़े लेकर कर रहे जी, बचाओ जी बाबू जी, बहुत मेहनत कर रहे जी। सवेरी तड़की आवाज़ 4 बजे जी बाबू जी, इस तरह गुजारा कर रहे जी। और सवेरे की टाइम हो आज मंडी का 10-12 बजे, बस उसके बाद घर बग जाए जी। सवेरे का काम हुआ जी। ठंड से बचाओ जी, कपड़ा लपेट का कर रहे जी बाबू जी, कपड़ा लपेट का जी। और ये मूल लपेट का बचाव कर रहे जी। आग भी सेक रहे जी बाबू जी। और जी क्या करा जी, मजबूरी के तरीका। ठंड, हाँ यार, ठंड बहुत ज़ोर से हो रही है। ठंड धुंध बहुत तेज़ है और ठंड के मारे काम भी नहीं कर पा रहे हैं। और क्या ठंड से ये कपड़े ऐसे बचाव कर रहे हैं, और क्या करना है। कंबल कहाँ, आग जला रहे हैं, आग से अपनी कोशिश कर रहे हैं। तबीयत खराब हो, हाँ बहुत ठंड हो रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। नार्कोटिक्स सेल की टीम ने नशा तस्करों को काबू करने के अभियान में कार्रवाई करते हुए तरावड़ी शहर से एक तस्कर को काबू कर उसके कब्जे से नशे के कैप्सूल समेत अन्य दवाइयां बरामद की हैं। नशा तस्कर को काबू कर उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक नार्कोटिक्स सेल की टीम ने डीएसपी गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में तरावड़ी की सौंकड़ा पुलिया पर छापेमारी करते हुए नशा तस्कर अजय कुमार पुत्र दर्शन निवासी गांव सौंकड़ा को काबू किया। यह तरावड़ी सौंकड़ा पुलिया पर नशा बेचने की फिराक में था। जानकारी देते हुए नार्कोटिक्स सेल के सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि उनकी टीम इलाके में चेकिंग कर रही थी, तो उक्त आरोपी पुलिस पार्टी को देखकर पीछे मुड़ने लगा। तो शक के आधार पर जब उसको पकड़कर तलाशी ली गई तो आरोपी अजय कुमार पुत्र दर्शन निवासी गाँव सौंकड़ा के कब्जे से 600 नशीली गोलियां और 92 कैप्सूल बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई डीएसपी गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। नमस्कार सर, मैं सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार, स्टेट नारकोटिक्स सेल करनाल से। आज हमें एक गुप्त सूचना मिली थी कि अजय कुमार पुत्र दर्शन गांव शोकड़ा
जो नशीली गोलियां बेचने का काम करता है। जिस सूचना पर आज हमें इसको काबू किया और इसके एक कब्जे से 600 अल्प्राजोल की गोलियां और 92 ट्रामाडोल बरामद किया। जी, क्या कुछ अपील करेंगे सर? नशा भी कारोबार चल रहा, लोग सूचना देने से भी डरते हैं, मतलब सूचना देनी चाहिए ताकि समाप्त किया जा सके। हाँ, सूचना देनी चाहिए जी, क्योंकि नई पीढ़ी है जो इस नशे की ग्रस्त में बहुत तेजी से जा रही है। जो बच्चों पे रोजगार न होने के कारण वो नशा करने लग गए हैं, जो उनको गांव का समाज का भी कर्तव्य बनता है कि वो उनको नशे से बचाए। कितने लोग कहाँ से पकड़े सर? यहीं से ये पुट्टी तरफ इसके तरफ के पास करनाली गेट। कितने लोग पकड़े हैं? एक ही पकड़ा है। अच्छा, एक पकड़ा है। कितनी गोलियां बरामद हुई सर? 600 तो अल्प्राजोल की गोलियां हैं सर जी, जो प्रतिबंधित हैं, और 92 कैप्सूल है जी ट्रामाडोल। तो ये बेचने की फिराक में थे? हाँ, ये राह चलतों को बेचता है। तो कार्रवाई जारी रहेगी सर? आप FIR लॉन्च करा रहे हैं सर इसके खिलाफ। मौके पर हमारे DSP साहब आए थे गजेंद्र जी, जिनके मौजूदगी में इसको सील किया है। खास तो आप लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने आज फिर आप पार्टी को घेरते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी तो कुछ भी कर सकती है और पंजाब में किसानों के धरने और आमरण अनशन के पीछे भी क्या उनकी कोई गेम है, या वह किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि किसान पंजाब की धरती पर बैठे हुए हैं। विज ने आज खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ने और शंभू बॉर्डर पर एक किसान द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। आप पार्टी की पंजाब सरकार क्यों स्थिति को खराब होने दे रही है? विज ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि किसान पंजाब की धरती पर बैठे हुए हैं और पंजाब में श्रीमान अरविंद केजरीवाल की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और उनकी सरकार है। उन्होंने कहा कि वह जाकर क्यों नहीं देख रहे हैं और क्यों वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और क्यों स्थिति को खराब होने दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन की पार्टियां अलग अलग दिखाई दे रही हैं और TMC और सपा ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है, जबकि कांग्रेस अकेली पड़ गई है। के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन को लिखने में भी बीच बीच में गैप है, जैसे कि इंडिया। इस प्रकार से इन पार्टियों में जो समझ होनी चाहिए थी वह पहले दिन से ही नहीं रही और जिसको जहां जहां अपने क्षेत्र में लाभ मिलता है वह अपने अपने ढंग से चल रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक की पार्टियां जो है अलग अलग पड़ती दिखाई दे रही हैं। TMC और सपा ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दिया, कांग्रेस अकेली पड़ गई है। देखिए, ये जो इंडिया पार्टी है इसमें इंडिया लिखने में भी बीच बीच में गैप है। I.D.I.A। तो इनके अंदर तो कहीं पर भी आपस में जो सामंजस्य होना चाहिए वो इनमें पहले दिन से नहीं रहा और रोज देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में जैसे जैसे जहाँ जहाँ जिसको लाभ मिलता है उस ढंग से वो कर रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पर जगदीश सिंह डल्लेवाल की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। आज शंभू बॉर्डर पर भी एक किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। देखिए, ये तो पंजाब सरकार और पंजाब की धरती पर किसान बैठे हुए हैं और पंजाब में श्रीमान केजरीवाल जी की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार है और वो क्यों नहीं जाके देख रहे हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना कर रहे हैं? क्यों वो स्थिति को खराब होने दे रहे हैं? क्या उसके पीछे भी उनकी कोई गेम है? क्या वो किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं? तो ये पार्टी तो कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस ने 25 लाख मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देने की जो है घोषणा की है अगर दिल्ली में सरकार बनती है। ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कांग्रेस को पता हमारी सरकार तो आने नहीं है, चाहे वो जो घोषणाएं कर दें उनको मालूम है सारी बात। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह एवं क्षेत्र अधिकारी यातायात अजीत चौहान ने मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण प्रदान किया। प्रभारी यातायात श्री परमहंस ने खलीलाबाद शहर क्षेत्र में अभियान का संचालन किया। भारी वाहन एवं ट्रैक्टर ट्रॉली पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन न चलाने की अपील
की गई। 3 सवारी न बैठने और बिना नंबर प्लेट के वाहन न चलाने की हिदायत दी गई। नशे में या ओवर स्पीड वाहन न चलाने का संदेश दिया। हेलमेट व सीट बेल्ट का अनिवार्य प्रयोग। संत कबीर नगर यातायात पुलिस ने सामाजिक लोगों से अपील किया है। परिवार, रिश्तेदार और समाज के लोगों को सुरक्षित वाहन चलाने हेतु प्रेरित किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। पिछले कई वर्षों से जवाई कमांड क्षेत्र के तकतगढ़ सहित अन्य कमांड क्षेत्र के चौही भूमि के काश्तकार सिंचाई से वंचित होने से चौही भूमि को जवाई नहर से सिंचित करवाने को लेकर बुधवार को भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज नामा व महामंत्री दिनेश कुमावत सहित राम सिंह नेतृत्व में काश्तकारों का प्रतिनिधि मंडल जयपुर पहुंचे। प्रतिनिधि मंडल ने कैबिनेट मंत्री एवं सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत से मुलाकात कर उनके नेतृत्व में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत से रूबरू होकर लंबे समय से कमान क्षेत्र के चौही भूमि किसानों को सिंचाई से वंचित रखने की पीड़ा व्यक्त करते हुए सिंचाई मंत्री को ज्ञापन सौंपकर चौही भूमि को जवाई नहर से सिंचित करवाने मांग करते हुए ज्ञापन में बताया गया कि तकतगढ़ राजस्व ग्राम की भूमि जवाई नहर से सिंचित होती है, लेकिन काफी भूमि जिसकी किरम चौही सोयम जाय सोमम है, जो भूमि जारी नहर से संचित नहीं की जा रही और वर्तमान में तकतगढ़ राजस्व ग्राम की काफी भूमि को आवासीय प्रयोजन रूपांतरण कर देने से नहर से सिंचित नहीं है होती। जो जवाई नहर का पानी विश्वविद्यालय विरुद्ध रूप से उसका दुरुपयोग होता है एवं निर्धारित सीमा के अधिक मात्रा में संचित किया जा रहा है। आज जयपुर में श्रीमान जोराराम जी कुमावत के वहाँ से हम सिंचाई मंत्री वीरेंद्र सिंह जी रावत के पास जाके मिले और जो भूमि जवाई नहर से सिंचित नहीं होती है और चाही भूमि है, उस भूमि को नहर से सिंचित करने के लिए किसानों का प्रतिनिधि मंडल जोराराम जी से मिला और जोराराम जी को साथ लेकर हम सिंचाई मंत्री वीरेंद्र सिंह जी रावत से मिलकर उनको प्रतिवेदन पेश किया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं जांच करवाकर इस बारे में जो वास्तु स्थिति है उससे अवगत करवाते हुए यथासंभव प्रयास करेंगे कि चाही भूमि को भी जवाई नहर से सिंचित करें। किसानों का प्रतिनिधि मंडल जयपुर में मिनिस्टर साहब श्री जोराराम जी से मिले और उनके मार्गदर्शन से हम मिनिस्टर अपने कृषि विभाग मंत्री के मिनिस्टर गजेंद्र सिंह राव साहब से मिलके हमने किसानों ने जो सही ज़मीन थी उस ज़मीन के मुद्दे के बारे में उनसे अवगत करवा के उनको जानकारी दी है कि भाई ये ज़मीन जो वंचित है उन ज़मीन को सिंचाई से जोड़ा जाए। और मंत्री साहब ने कहा कि मैं धरातल के स्तर पे इसकी फीडबैक लेके और पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि आपकी ज़मीन को रियल्टी जो है उसका दायित्व वो उसको दिया जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। सिरोही जिले के शिवगंज पुलिस ने 4 दिन पूर्व शिवगंज निवासी शेखर कुमार की हत्या करने के मामले में खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि 5 जनवरी को शिवगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सुथारों का वास शिवगंज में एक युवक जिसका नाम शेखर कुमार पुत्र देवाराम जाति दमामी निवासी खड़ियावास के साथ भावेश पुत्र जोगराम, भरत पुत्र जोगराम, गौतम पुत्र प्रेमाराम जातिगण महानिवासी गण शिवगंज, सचिन पुत्र कूपराम जाति ढोली निवासी शिवगंज द्वारा मारपीट कर मोटरसाइकिल पर अपहरण कर साथ ले जाकर बड़गांव से देवली जाने वाले रास्ते पर लोहे की रॉड से गंभीर मारपीट कर पटक कर चले गए, जिसका अस्पताल शिवगंज लाए हैं, जिसने दम तोड़ दिया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गौ व समाज प्रकोष्ठ की ओर से इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स रेसिडेंसी रोड जोधपुर में श्री माधव सेवा समिति के बाली सिंह के नेतृत्व में कच्ची बस्ती में रहने वाले बच्चों के लिए जोधपुर महानगर खेल कूद प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में एडवोकेट संजीव व्यास, अविनाश मूथा, अंकित पुरोहित, मेना व्यास, भरत सिंह, देवेंद्र गहलोत, कृष्णा पवार व लक्ष्मी शेखावत रहे, जिनका रुपट्टा व तस्वीर भेंट कर स्वागत किया गया। खेलकूद में कबड्डी, खो खो, लंबी कूद व ऊंची कूद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 110 बच्चों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर श्री खेल रत्न 2025 से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बच्चों को मोगर, कचौरी व पौष्टिक तिल व गुड़ के लड्डू खिलाकर आहार सेवा की गई। कार्यक्रम में रोचित शर्मा, अजय सिंह, आनंद व्यास, लखपत परिहार, आशीष पुरोहित आदि उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। महाकुंभ में बालाजी महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज के द्वारा खाद्य सामग्री वितरण कराई जाएगी। बालाजी जनसेवा शिविर के माध्यम से बालाजी महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज 10 जनवरी को 100 टीन घी, 200 टीन तेल, 200 टन अनाज और 10 टन दाल प्रयागराज महाकुंभ भेजेंगे। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से यह सामग्री महाकुंभ में वितरित कराई जाएगी, जिससे मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालु लाभान्वित होंगे। महंत द्वारा एक भव्य सेवा शिविर भी कुंभ में लगाया जा रहा है। 13
जनवरी से 26 फरवरी तक लगेगा, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं को निःशुल्क ठहरने और भोजन की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही अनुष्ठान, भजन, कीर्तन और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कड़ाके की ठंड से राहत के लिए 10,000 कंबलों का भी वितरण होगा। महंत डॉक्टर नरेशपुरी जी महाराज 14 जनवरी को शाही स्नान करेंगे। महंत डॉक्टर नरेशपुरी जी महाराज ने कहा, सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। कुंभ मेले जैसे पावन अवसर पर सेवा के माध्यम से भक्तजनों की सहायता करना हमारा धर्म और कर्तव्य है। बालाजी मंदिर समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।